ગામડાઓની અંદર લોક જાગૃતિ માટે પોતાના હક અધિકારો માટે જ્યારે સમજાવવા જતા હતા ત્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકર એ લોકોને સમજાવતા હતા કે તમે ઉદ્યોગ રોજગાર તરફ પણ વળો અને એના માટે તમારે જો આ જગ્યા બદલવી પડે, તમારા ગામને છોડવું પડે, તમારા શહેરને છોડવું પડે તો એ છોડો। એ બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણને એ વખતે કહ્યું હતું કે તમારે પણ ઉદ્યોગ ધંધા તરફ વળવું પડશે। આપણે આઝાદી પછી નોકરીઓ તરફ વળ્યા વધારે પડતા અને ઉદ્યોગ ધંધા તરફ આપણે થોડું ઓછું ધ્યાન આપ્યું, પણ આમ છતાં આ એક પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે ભારતભરની અંદર અને લોકો એ તરફ વધી રહ્યા છે અને એને પ્રોત્સાહન આપવા એસસી બિઝનેસ સમિટનું આજે આયોજન કરાયું છે। આ કાર્યક્રમમાં જે મહેમાનો છે એમને એમનું શાબ્દિક સ્વાગત માટે હું રાજુભાઈ સોલંકીને વિનંતી કરીશ કે આવી અને શાબ્દિક પ્રવચન કરે। રાજુભાઈ સોલંકી। साथियों, जय भीम। एससी बिजनेस समिट इंडिया टीम आज का ये जो नेशनल अवार्ड सेरेमनी, सेमिनार और एग्जीबिशन का जो आयोजन किया गया है, इस मंच पे इस एससी बिजनेस समिट इंडिया टीम का प्रेसिडेंट होने के होने से आप सबको दो हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो कुछ लोग गुजरात के बाहर से भी आए हैं, अगर वो यहाँ पहुंच गए हो तो सबसे पहले कंचन लता मैडम जी मंच पर आए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि गुजरात के बाहर यूपी से आए यहाँ पर, ताकि युवाओं को रोजगार की तरफ आगे बढ़ा सके। जोरदार तालियों से प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। आज के इस कार्यक्रम में अपने बहन जी मीराबेन पटेल गांधीनगर के मेयर, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। रीटाबेन पटेल एमएलए गांधीनगर धारासभ्य, એમનું પણ આપણે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ। યમનભાઈ વ્યાસ ચેરમેન નાણાં પંચ ગુજરાત, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। આજના આ કાર્યક્રમમાં મંચ પર આ મહાનુભાવોની સાથે સાથે ગાંધીનગર જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તરફથી બરંડા સાહેબ, મૌલિકભાઈ, એમનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ। એમએસએમઈ ડિપાર્ટમેન્ટ, જીઆઈડીસી, એ તમામ લોકોનું આપણે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીશું। રતિલાલ મકવાણા સાહેબ, વિશાખા ગાયકમેન હૈદરાબાદથી ટૂંક સમયમાં અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। તેઓ ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર છે। કેટી વાઘેલા સાહેબ આપણા એસસી બિઝનેસ સમિટ ઇન્ડિયા ટીમના રાષ્ટ્રીય સલાહકાર છે। અશ્વિનભાઈ બેંકર સાહેબ આપણા આ કાર્યક્રમને કોઓર્ડિનેશનમાં સહયોગ આપ્યો છે, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ। આપણા મહામંત્રી એવા દિલીપભાઈ સુત્રે સાહેબ, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ। સહમંત્રી અને ઉપપ્રમુખ
સુગતભાઈ પરમાર અને શાંતિલાલ મહેરિયા તથા તમામ અન્ય આપણા સાથી મિત્રો માટે આપણી ટીમ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જવી જોઈએ. એ લોકોના અથાગ પ્રયત્નો હતા ત્યારે આપણે આ પ્રોગ્રામને સફળતા આપી શક્યા છીએ. મિત્રો, બહુ મોટી સંખ્યામાં મહાનુભાવો મંચ પર ઉપસ્થિત છે. તેઓને સાંભળીએ તે પહેલા આજનો આ જે કાર્યક્રમ છે એના વિશે માત્ર ને માત્ર 5 મિનિટ હું વાત કરીશ. 2015માં આપણને એક વિચાર આવ્યો અને ખૂબ મંથન કરીને આપણે SC/ST બિઝનેસ સમિટ ઇન્ડિયા ટીમની સ્થાપના કરી. ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં આપણે બિઝનેસ સમિટ કર્યા છે. ગાંધીનગર સેક્ટર 7 ખાતે કર્યા છે, સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કર્યા છે, નડિયાદ ખેડા આણંદમાં પણ કર્યા છે, અમદાવાદમાં સાબરમતી ખાતે પણ કર્યા છે. અને આ તમામ બિઝનેસ સમિટના પ્રતિસાદો ઘણા યુવાનોને આપણા સેમિનારથી રોજગાર મળ્યા છે, બિઝનેસ મળ્યા છે. સારા પ્રતિસાદનો ઉદ્ભવ એટલે આજનો આપણો નેશનલ SC/ST બિઝનેસ સમિટ ઇન્ડિયા. साथियों, हिंदी में एक कहावत है कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, बीच हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन बिजनेस की आग निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए. आज इस मंच से SC/ST बिजनेस समिट इंडिया टीम की ओर से मैं मंच पर उपस्थित अपने महानुभाव में गांधीनगर के मेयर श्री मीराबेन को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना इस प्रोग्राम को लेकर मंतव्य स्पष्ट करें. प्लीज, मोस्ट वेलकम. SC/ST બિઝનેસ સમિટ ઇન્ડિયા દ્વારા આયોજિત રાષ્ટ્રીય સન્માન સમારોહ તથા એક્ઝિબિશનમાં અત્રે ઉપસ્થિત સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવો તથા મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર. દેશના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તેમજ આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી તેમજ આપણા ગાંધીનગરના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ અને રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં રાજ્ય અને દેશનો સર્વાંગી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દેશ 2047માં વિકસિત ભારતના સંકલ્પ સાથે દરેક ક્ષેત્રે ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. ત્યારે દરેક સમાજ આ વિકસિત ભારતના સંકલ્પમાં જોડાય તો જ દેશનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય બને છે. આપની સંસ્થા દ્વારા ખૂબ સરસ મજાના કાર્યક્રમ બદલ આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. તેમજ આપની નવીન પહેલ યુવાનો માટે, મહિલાઓ માટે અને વિધવા મહિલાઓ માટે પણ જે આપે પગલાં ઉઠાવ્યા છે તેમજ તે માટે પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આપના આ પ્રયત્નથી અનેક લોકોને રોજગારી મળશે તેમજ બીજા લોકોને પણ રોજગારી આપશે. આપ સૌને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શુભકામના પાઠવું છું. આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી. મહેમાનોનું ફુલાથી સ્વાગત કરતા પહેલા ભારતના જે સંવિધાન છે એ સંવિધાનના આમુખનું આપણે સૌ પઠન કરીશું. એટલે દરેક મિત્રોને અપીલ કે આપણે બધાએ, હું બોલું સાથે સાથે તમારે પણ બોલવાનું છે. અમે ભારતના લોકો ભારતને એક સાર્વભૌમ समाजवादी बिन सांप्रदायिक लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक तरीके संपादित करवानो तथा तेना सर्व नागरिकों ने सामाजिक आर्थिक અને રાજકીય ન્યાય विचार अभिव्यक्ति मान्यता धर्म અને ઉપાસના ની સ્વતંત્રતા
સ્વતંત્રતા દરજ્જા અને તકની સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેમ કરવાનો અને તેઓ સર્વમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા સુદૃઢ કરે એવી 26 નવેમ્બર 1949 ના રોજ આ સંવિધાન અપનાવી તેને અધિનિયમિત કરી અમને પોતાને અર્પિત કરીએ છીએ. જય ભારત, જય ભીમ, જય ભીમ, જય સંવિધાન, જય સંવિધાન, જય સંવિધાન. આપણે સૌ તાલીના ગણગણાટ સાથે વસાવી વધાવી દઈશું. સાથે રાજેશભાઈ એ બેનનો પરિચય આપશે. जिस तरह नरेंद्र भाई ने बात की कि भाई समाज को सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक सदस्यता मिलनी चाहिए, तो एक नहीं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं लेकिन तीनों के तीनों दर्जों में समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सक्षम प्रदान करने के लिए मैडम आजीवन प्रयत्नशील रहे. उनका प्रयास आज भी चालू है. उनका ये मानना है कि ये समिट गुजरात में हो, ये समिट दिल्ली में हो, और ये समिट भारत देश के चार कोने में होना चाहिए. ऐसे विचार से आने वाले कंचन मैडम के लिए जोरदार तालियां. सभी डिपार्टमेंट से आए हुए महानुभावों का हम सम्मान करते, पूरी टीम सम्मान करेंगे. अभी અત્યારે આપણે પોતાનો બિઝનેસ છે ને પોતે જેવા વિસ્તારમાં એમની ઓફિસ છે અને ખૂબ મિલનતા સ્વભાવના અને એક સફળ બિઝનેસ એમણે એને ઉભો આપ્યો છે. એવા કમલેશભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, સાધુવાદ. જય ભીમ, જય સંવિધાન. આજના SC/ST બિઝનેસ સમિટ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નાણાપંચ ચેરમેન યમલ વ્યાસજી, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર શ્રી લીલાબેન પટેલ તેમજ સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત સર્વ આયોજકો, સમાજના સર્વ આગેવાનો, અલગ અલગ જગ્યાએથી આવેલા સફળ ઉદ્યોગપતિઓ અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સર્વ મારા વડીલો, આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણો સમાજ કહેવાતો તો એવો એક સમાજ કે કચડાયેલો સમાજ એ ક્યાંય સમાજમાં પાછળ હતો, પણ આજના દિવસે આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરજીને યાદ કરવા જોઈએ કે એમના પ્રયાસોથી આજે આપણો સમાજ ક્યાં પહોંચ્યો છે. આજે એક બિઝનેસ સમિટ, આ બિઝનેસ સમિટનું આયોજન ક્યારે થાય? જ્યારે સમાજ પ્રગતિ કરી રહ્યો હોય, એનું ઉત્કર્ષ થઈ રહ્યું હોય, સમાજ જ્યારે સફળતાના શિખરો ટચ કરી રહ્યું હોય ત્યારે આવા બિઝનેસ સમિટ થાય. અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં બિઝનેસ સમિટ થયા છે. આજે આપણા સમાજમાં સાહસિકો, યુવાનો આગળ વધી રહ્યા છે અને નાના મોટા પોતાના સ્ટાર્ટઅપ કરી રહ્યા છે. કોઈ પણ બિઝનેસ શરૂઆત કરવી હોય, કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપની શરૂઆત કરવી ત્યારે થોડુંક તો સાહસ કરવું જ પડે. કારણ કે આપણી વ્યાખ્યા, આપણું એક એવાન છે કે સાહસ વિના સિદ્ધિ નહીં. કોઈ પણ શરૂઆત કરવી હોય, નાની મોટી શરૂઆત કરવી હોય તો નાનું મોટું સાહસ કરીને આપણે એ આગળ વધવું પડે. અત્યારે સરકાર પણ, રાજ્ય સરકાર પણ કેટલી બધી યોજનાઓથી, તમે યોજનાઓનો અભ્યાસ કરજો કે એટલી બધી યોજનાઓ છે કે યોજનાઓથી આપણે ખૂબ સારું યોજનાઓનો લાભ લઈને, ફાઇનાન્સનો, ગ્રાન્ટનો લાભ લઈને આપણે આગળ વધી શકીએ એમ છીએ. ત્યારે થોડીક વાતો મારે તમારી આગળ મૂકવી છે કે આપણું ગુજરાત, આપણો દેશ, ભારત દેશ આજે કઈ દિશામાં કામ કરી રહ્યો છે. આજે આપણું ગુજરાત એ ભારત વર્ષનું ગ્રોથ એન્જિન કહેવાય છે. ત્યારે
સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં આપણો દેશ પ્રથમ છે, નિકાસની તૈયારીઓમાં પ્રથમ, બિન પરંપરાગત ઉર્જામાં પ્રથમ, લોજિસ્ટિક રેન્કિંગમાં પ્રથમ, વિદેશી પ્રવાસીઓમાં પ્રથમ, જેડ પ્રમાણપત્રમાં પણ પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. આજે વિશ્વની 500 ફોર્ચ્યુન કંપનીઓમાંથી 100 કંપનીઓમાં એકમો ચાલુ છે. રાજ્યની 2039 જીઆઈડીસીઓમાં અંદાજે 75,000થી વધુ કંપનીઓમાં લાખો કારીગરો કામ કરી રહ્યા છે. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઉદ્યોગની દિશાની અંદર આપણો દેશ, આપણું ગુજરાત રાજ્ય એટલી બધી રોજગારી આપી રહ્યું છે. 39 લાખ એમએમઈ એકમોમાં 90 લાખથી વધુ લોકોને રોજગારી મળે છે. 190 દેશોમાં નિકાસ કરીને રાજ્ય વિદેશી મૂલ્યાંકન ભારત લાવે છે. આપ સૌને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે રોજગારી આપવામાં ગુજરાત પ્રથમ છે અને સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતની બેરોજગારીનો દર માત્ર 1.1% જ છે. આ બેરોજગારી આપણે ક્યારે ઓછી કરી શકીએ છીએ? ઉદ્યોગીકરણથી. બધાને સરકારી નોકરી તરફ દિશામાં આગળ વધીએ, પણ બધાને સરકારી નોકરી મળી શકે એમ નથી. ત્યારે આપણે નાના મોટા રોજગાર ઉત્પન્ન કરવા જ પડશે અને એના માટે સાહસ કરવું જ પડશે, એ દિશામાં આગળ વધવું જ પડશે. આજે રાજ્યના લોકોની વીજ માંગમાં 6% વૃદ્ધિ થઈ છે, રોજગાર વધી રહ્યા છે, ઉદ્યોગીકરણ થઈ રહ્યું છે અને વીજ ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં 27,000 મેગાવોટ બિન પરંપરાગત ઉર્જાનું ઉત્પાદન કરે છે, જે 2030 સુધી 40,000 મેગાવોટ કરવાનું આયોજન છે. આ આયોજન એટલા માટે કરવા પડ્યું કારણ કે ઉદ્યોગીકરણ વધી રહ્યું છે. આપણા ગુજરાતની અંદર ઉદ્યોગમાં, સાહસમાં આજે લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સના ઉત્પાદનમાં 12% ફાળો આપીને અને 367 ચાર્જિંગ સ્ટેશન સાથે આ નવા ક્ષેત્રમાં પણ ડંકો વગાડ્યો છે. તમે જુઓ, નાના ક્ષેત્રની અંદર આજે આપણું ગુજરાત એટલું વિકાસ કરી રહ્યું છે. છેલ્લા 20 વર્ષોના નિકાસના કારણે ગુજરાતના વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક 18,000 રૂપિયાથી વધીને 2,73,000 થઈ છે. આ ગુજરાત રાજ્યનો આંકડો છે અને આજનો સ્પષ્ટ આંકડો છે. આ વર્ષે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ડિસ્ટ્રિક્ટ હેઠળ 32 જિલ્લાઓમાં 2600થી વધુ એમઆરયુ થયા. તેનાથી 45,000 કરોડથી વધુ મૂડીરોકાણ અને નવી 1.5 લાખ રોજગારીનું સર્જન થયું છે. આપણું ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત તરીકે ઓળખાય છે અને એની શરૂઆત આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી શરૂઆત કરીને આ વખતે પણ 100 જેટલી કંપનીઓએ ગુજરાત સાથે એમઓયુ કર્યું હતું અને એમાં લાખો લોકોને રોજગારી મળી રહી છે. આમ આપણે સરકારી જો આપણે જોઈએ ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે આપણા નવયુવાનોને આટલી રોજગારી મળે છે, પણ આવા નાના સ્ટાર્ટઅપથી જોઈએ તો કેટલાય લોકોને રોજગારી મળે છે અને કેટલાય પરિવારો આજે સુખી થઈ રહ્યા છે. ત્યારે આજે બિઝનેસ સમિટ જે આપણા સમાજ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે નવા સ્ટાર્ટઅપની દિશા તરફ તમારું કોઈ પણ થોડું પણ આયોજન હોય તો આજના દિશામાં તમને માર્ગદર્શન મળે, તમે આ દિશામાં ખૂબ આગળ વધો અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે આપણે એમાં પણ લાભ કરતા થઈએ, એ જ અભ્યર્થના સાથે જય હિન્દ, જય ભારત, જય ભીમ. જય ભીમ. मंच पर उपस्थित सम्मानीय गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अतिथिगण, महत्वाकांक्षी और उपस्थित सभी उद्यमी देवी और सज्जनों, जय भीम, नमस्ते और आप सभी को सुप्रभात। गांधीनगर के इस शहर में SC/ST बिजनेस समिट में इस समारोह की संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज हम केवल व्यावसायिक अवसरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जीवन को बदलने, समुदाय को सशक्त बनाने और एक अधिक समावेशी भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय उद्यमियों और भविष्य के व्यवसाय नेताओं, हम अपने राष्ट्र की आर्थिक यात्रा पे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। जब भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की और अग्रसर है, तब यह आवश्यक है कि हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग
इस विकास की कहानी में भाग ले और लाभान्वित हो। SC/ST समुदाय को अपनी अपार प्रतिभा और क्षमता के साथ इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हमारे महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि व्यवसाय में उतरने का यह सही समय क्यों है। पहला, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है। डिजिटल क्रांति ने प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया है, जिससे न्यूनतम प्रारंभिक निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करना संभव हो गया है। चाहे वह ई-कॉमर्स हो, ऑपरेशंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो या औद्योगिक, सभी क्षेत्रों में अवसर अवेलेबल है। दूसरा, सरकार ने विशेष रूप से SC/ST उद्यमियों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली बनाई है। क्या आप जानते हैं कि स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं SC/ST उद्यमियों को 10 लाख से लेकर 50 करोड़ तक की ऋण प्रदान करती है। क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम बिना जमानत के क्रेडिट प्रदान करती है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अवसर हमें SC/ST को दिया है। राष्ट्रीय SC/ST हब MSME उद्यमों को तकनीकी और ऑपरेशंस सहायता प्रदान करता है। ये सब हमें, ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट या पिछले गवर्नमेंट ने भी ये जो हमारे लिए जो SC/ST के लिए अलग अलग जो स्कीम्स है, ये पर्टिकुलर ये गवर्नमेंट ने 10 साल में बहुत हमारे लिए अच्छी पहल की है। और ये सब स्कीम हमें उसके ऊपर काम करना है और उस काम के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योर्स के नाते हम हमारे जो SC/ST के जो नए उद्योगपति है, जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उसको हम गाइडेंस रेगुलरली देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट भी देती है, MSME डिपार्टमेंट है, EIC है, बट हमारी तरफ से भी हमारी जवाबदारी बनती है कि हम भी हमें जो अनुभव है हम हमारे समाज के बच्चों लोगों को, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स को दे। हम लोग ने पहल की है और हम लोग एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये आपको अपील है, हम हमसे कांटेक्ट करें और हम आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब मैं हमारे स्थापित उद्यमियों को संबोधित करना चाहता हूं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, उनको लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो विभिन्न व्यवसायिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, अलग अलग उनको चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस कैसे फेस करें उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि उनके लिए गाइडेंस बहुत कम लोग देते हैं। तो वो हमारी जो 20-25 साल का जो अनुभव है, हमें लगता है कि हमें जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है उनको भी हमें प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं 3-4 बिंदुओं के लिए मैं इसकी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। जैसा कि विपणन और बिक्री चुनौतियों का जो चैलेंजेस जो है, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, उसमें बहुत चुनौतियां होती है। तो वो कैसे हैंडल करें। सरकारी खरीद अवसरों के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस अवेलेबल है, जो हमारे बहुत से बच्चे लोगों को मालूम नहीं है। जो ई-सिस्टम है, जैसे कि जे पोर्टल्स है, अलग अलग ई-कॉमर्स सिस्टम है, उसका आप फायदा लें। विक्रेता अवसरों के लिए बड़े निगमों से जुड़िए, जैसे कि नाबार्ड है या CDP है। बहुत से अलग अलग संस्थाएं हैं जो हमारे SC/ST बच्चों लोगों को सहायता करती है।
बहुत से बच्चों लोगों को ये मालूम नहीं है, तो इसलिए हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। MSME मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुफ्त डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण भी होते हैं, उसका भी आप लाभ लेना चाहिए। जो डिजिटल मार्केटिंग कैसा होता है, तो ये MSME डिपार्टमेंट ये सब स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए सब सुविधा अवेलेबल है, उसका भी आप लाभ उठाइए। क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं, तो हमें कंटिन्यूअस हमारा जो ट्रेनिंग या स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, तो ही हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग रेगुलरली लेना जरूरी है। जो अपडेशन, टेक्नोलॉजी का अपडेशन, सेल्स का, मार्केट की अवेलेबिलिटी है, उसका अपडेशन ये ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, उसका आपको लाभ होना चाहिए। गवर्नमेंट में सब अवेलेबल है, बट हमारे बच्चे आगे आकर उसका लाभ नहीं उठाते। तो गवर्नमेंट बहुत सी एडवर्टाइजमेंट करती है, पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है, बट हमारे बच्चे बहुत कम 5-10% लोग आगे आकर उसका लाभ उठाते हैं, और भी 90% लोग सामने नहीं आते। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उसका अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरा बिंदु है कार्यशाली पूंजी प्रबंधन के लिए। जो वर्किंग कैपिटल, बहुत से बिजनेस शुरू हो जाते हैं, परंतु वर्किंग कैपिटल जो खेलता भांडवल जो होता है, उसकी वजह से आपका बिजनेस रुक जाता है, तो उसके लिए भी बहुत प्रावधान अवेलेबल है। जैसे कि ये जो तत्काल चालान वित्त प्रश्न, जैसे कि जो आप इनवॉइस रेज करते हो, उसके ऊपर आप बैंकों से फंडिंग ले सकते हो। आप वो कोई भी जो क्लाइंट को इनवॉइस करते हो, उसका डिस्काउंटिंग करते हैं, जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग बोलते हैं। बहुत से बच्चे लोगों को इसका मालूम नहीं है। तो आप वो वर्किंग कैपिटल कैसा, जैसे ही आपने माल सप्लाई किया, आपने इनवॉइस रेज किया, बैंक आपको उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट देती है, और वो डिस्काउंट करके आपको 90% या 100% भी पैसा देती है एडवांस में, और जब उसका ड्यू डेट आता है, वो बैंक को डायरेक्ट पैसा चला जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। व्यवसाय विस्तार के लिए मुद्रा योजना की बड़ी क्रेडिट सुविधा, जो क्रेडिट लाइन, जो बैंक क्रेडिट लाइन देती है, ट्रेड फाइनेंस बोलते हैं उसकी, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी आप ले सकते हैं। जैसे कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, अलग अलग बैंक में फैसिलिटी होती है, तो वो भी लेना जरूरी है आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए। दूसरा, क्रेडिट गारंटी फंड योजना पर विचार के 2 करोड़ तक का बिना जमानत के क्रेडिट प्रदान करती है। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो 2 करोड़ तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। SC/ST उद्योगों के लिए डिजाइन किए गए विशेष कार्यशील पूंजी समाधानों के लिए सिडबी के संपर्क करिए। जो सिडबी जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सिडबी के पास बहुत सी अलग अलग सुविधाएं अवेलेबल है ये वर्किंग कैपिटल रेज करने के लिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है गुणवत्ता वृद्धि के लिए। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको बिजनेस करना है, तो आपकी स्किल रेगुलरली अपडेट करनी पड़ेगी, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। MSME मंत्रालय के माध्यम से गुणवत्ता प्रमाण कार्यक्रमों का रेगुलरली उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, उसका आप लाभ लीजिए। एक थ्रेड डिफेक्ट जीरो इफेक्ट करके थ्रेड एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा पहल किया है। 80% सब्सिडी के साथ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण योजना का उपयोग करें। आप गूगल में जाकर आप चेक करो थ्रेड क्या है, ZED, उससे आपको मालूम पड़ेगा ये योजना का क्या महत्व है और कैसे वो उस योजना का आप लाभ उठा सकते हो। तीसरा है क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का द्वारा आयोजित गुणवत्ता सुधार कार्यशाला। क्वालिटी एसोसिएशन जो है, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी मेंटेन करनी चाहिए, कस्टमर को कैसा सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसकी भी प्रशिक्षण अवेलेबल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञ आपको जो टेक्नोलॉजी जरूरत चाहिए, तो टेक्नोलॉजी का भी असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है। बहुत सी सुविधाएं हैं, पर हमारे बच्चों लोगों को उसकी मालूम नहीं है। दूसरा पॉइंट है वसूली के लिए। जो बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, परंतु वो क्रेडिट देते हैं,
क्रेडिट देते हैं, पर वो कुछ पैसा रिकवर कैसा करना, वो पैसा वापस कैसा लाना, बहुत से लोग जानते नहीं, कभी कभी वो पैसा डूब भी जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक योजना है, विलंबित भुगतान समाधान के लिए MSME समाधान पोर्टल पर पंजीकरण करें, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करो। बाद में MSME विकास अधिनियम 2006 के तहत अपने अधिकारों को समझे। नए ग्राहकों के लिए मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली लागू है और हेलो दूसरा और एक अच्छा प्रावधान है इंश्योरेंस। विभिन्न संस्था के माध्यम से उपलब्ध क्रेडिट बीमा, जो आप लोग जो इसको क्रेडिट देते हो तो उसका बीमा भी होता है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका क्रेडिट बीमा भी लेकर आप आपका प्रोटेक्शन कर सकते हो। आपका जो बिजनेस करते हो उसमें आपका क्रेडिट बीमा भी ले सकते हो। व्यापार वित्त समाधान के लिए जो निर्यात सुरक्षा के लिए निर्यात क्रेडिट गारंटी, गवर्नमेंट has already given some they have already derived some policy for the credit। तो उसके ECGC स्कीम होती है गवर्नमेंट की, वो आप जब कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट के थ्रू आप ले सकते हो। रियासती दरों पर उपलब्ध लेटर ऑफ क्रेडिट, जो दूसरा एक अच्छा प्रावधान है। बिजनेस करने के लिए सबके पास 100% फंड नहीं होता है, तो बैंक में जाकर आप ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर आप लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये ऐसे डॉक्यूमेंट, उसको बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट आप बिजनेस कर सकते हो। हमारे बच्चे लोग समझते हैं कि हमारे पास 100% पैसा हो चाहिए बिजनेस करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप बैंक में जाके आपका ट्रेड फाइनेंस, आपका जो टर्नओवर है उसके ऊपर आपको बैंक ट्रेड फाइनेंस भी दे सकती है, जैसे कि LC है, बैंक गारंटीज है, उसके अगेंस्ट आप वो लोन ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको चाहिए तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली। निजी बैंक जो होते हैं प्राइवेट बैंकिंग, वो लोग आपको सप्लाई के अगेंस्ट क्रेडिट भी देती है। वो जैसे कि बहुत से बैंक है, तो आपका सब जो क्लाइंट अच्छा है और उसकी KYC करने के बाद बैंक आपको क्रेडिट देती है अगेंस्ट योर इनवॉइस। तो ऐसे बहुत से प्रावधान अवेलेबल है जो हमारे बच्चों लोगों को मालूम नहीं है। ये सब चुनौतियां है, वो चुनौती के लिए हमें साथ फेस करना है। जो एस्टैब्लिश बिजनेस है वो लोगों को ये सब मालूम है, पर हमारे बच्चों लोग को इसका ज्ञान नहीं है। हमारी जवाबदारी है ये सब आपको उपलब्ध करें। किसको संपर्क करना चाहिए ऐसे वक्त में? गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है, स्थानिक MSME विकास संस्थान है, पूरे भारत में SC/ST हब कार्यालय है, जिला उद्योग केंद्र है, चेंबर ऑफ कॉमर्स SC/ST सेल है, बैंक की विशेष SME शाखा है, ये सब अवेलेबल है। आप जाके इंक्वायरी करो, डिस्कस करो और आपको सब लोग तैयार है। ऐसे नहीं कि बहुत लोग बोलते कि ये लोग कोई हेल्प नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप जब आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर लेके जाओगे, आप लोग को ये सब डिपार्टमेंट आपके लिए सहायता के लिए तैयार है, पर आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी में हम लोग कम पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट, हाउ टू प्रेजेंट योर प्रपोजल। इसके लिए हम लोग आपको गाइड करके आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कमियां हैं वो कमियां को कंप्लीट करके बाद में फिर आप बैंकर के जाओ, बाद में गवर्नमेंट के पास जाओ। ये फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट आप दोगे तो आपको कभी भी कमी नहीं होगी, गवर्नमेंट ऐसा रिजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि इसने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है। इसलिए आपकी जवाबदारी है कि प्रॉपर प्रपोजल सबमिट करो, उसके बाद आप परस्यू करो। फ्रेंड्स, जो बड़ा कदम उठाने में हिचक रहा है, जो नए उद्योगी के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ कि व्यवसाय की दुनिया भयभीत करने वाली लग रख सकती है, लेकिन याद रखें हर सफल उद्यमी में एक कदम शुरुआत की जरूरत होती है। शुरुआत करोगे तो
कोई भी शुरुआत होती है, फाउंडेशन डालना पड़ता है, तो ही आगे पेड़ होता है। इसलिए आप आगे बढ़ो, बिजनेस करने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग ले लो, प्रॉपर ये ले लो, गाइडेंस ले लो, उसके बाद आप इस बिजनेस में पैर रखो। और 5 मिनट खाली आए। SC/ST हब ऐसे में भी उद्यमियों को तकनीकी और वितरण सहायता प्रदान करता है। ये सब मैंने आपको बताया। अभी लास्ट में जो पहले से बिजनेस में है, दृढ़ता और अनुकूल क्षमता महत्वपूर्ण जरूरी है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें दृढ़ता और अनुकूल क्षमता बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर अपने व्यवसाय का मॉडल नया रूप देने में संकोच न करें। क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो घिसा पिटा उसी करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल, कुछ इनोवेशन डाल, नया कुछ तकनीकी आती है, नया कुछ मार्केट में आता है, उस मार्केट के मुताबिक आप आगे पहल करो। याद रखें, जब आप व्यवसाय में सफल होते हो तो आप केवल अपने लिए धन नहीं कमाते, आप रोजगार देते हो, दूसरों को प्रेरित करते हो और पूरे परिवारों को गरीबी से बाहर निकालते हो। आप अगली पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हो। इसलिए आपको बिजनेस में आना बहुत जरूरी है। एक रोल मॉडल बनो। मैं एक शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक गरिमा की नींव है। आर्थिक स्वतंत्रता जो है एक सामाजिक गरिमा की नींव है। तो जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो हमारी सामाजिक प्रगति भी होती है। इसलिए फाइनेंस भी बहुत जरूरी है हमारा प्रोग्रेस के लिए। जब हम नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनते हैं तो हम न केवल अपना जीवन बदलते हैं बल्कि हम अपने पूरे समुदाय की धारणा को बदल देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम नौकरी देने वाले बनो, ना कि नौकरी मांगने वाले। ये आज जो आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से जो आज इतनी शिक्षा ली है, वो शिक्षा का उपयोग करो। खाली नौकरी के पीछे मत भागो। हमने भी शुरुआत की नौकरी से, बट लास्ट 25 साल से मैंने बड़ी बड़ी नौकरियां, जो फॉर्च्यून 500 अमेरिकन कंपनी में मैं नौकरी करता था दुबई में। मैंने साल में 1.5-2 करोड़ का पैकेज था, वो भी मैंने रिजाइन करके उसका बिजनेस शुरू किया। तो इसलिए आप नौकरी में सीमित मत रहो, आप बिजनेस में आओ। उसके लिए आपको पूरा गाइडेंस गवर्नमेंट से भी है और हम लोग के जैसे जो बिजनेसमैन हैं उनके तरफ से भी है। फ्रेंड्स, उद्यमिता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन कोई भी मूल्यवान चीज कभी आसान नहीं होती। सोच समझ कर जोखिम ले, निरंतर सीखे और सबसे महत्वपूर्ण खुद पर विश्वास रखे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार और वित्तीय संस्थानों ने परिस्थिति तंत्र बनाया है। गवर्नमेंट हैज provided all those facilities, all those schemes, but it is our responsibility to avail them. Okay? अब इसका अधिकतम लाभ उठाना जरूरी है। हमें गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया है, पर हम लोग वो टैप नहीं कर रहे हैं। बहुत सी स्कीम ऐसे कि वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही है। इसलिए हमें उसके ऊपर काम करके हम उसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम फैसिलिटी जो अवेलेबल है उसका लाभ उठाए। फाइनली यह शिखर सम्मेलन आपकी उद्यमिता यात्रा में एक मोड़ बने, एक आपको डायरेक्शन मिल रहा है। आज जो आप SC/ST हब समिट में आज इधर है, आपका एक करियर, बिजनेस के लिए एक करियर, आपको एक फाउंडेशन डाल रहा है, उसका आप लाभ लो। साथियों, उद्यमियों से जुड़े जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं उनसे आप जुड़ो, उनसे सीख लो और अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाओ। ऐसा मत करो कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है। अब हम रोज सीखना पड़ेगा, रोज हमें सीखना पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस के लिए। हम आज भी कुछ नया सीखते तो हम रोज भी सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये
मैं अभी 69 ईयर ओल्ड हूँ, परंतु मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की वजह से मेरा काम इतना आसान हो गया कि मैं मेरे खुद के प्रोजेक्ट, मेरे लेटर्स, कम्युनिकेशन एक 5 मिनट में अंदर में बनाता हूँ। समझे? ये तकनीक आपका काम कैसा आसान हो, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, अकाउंटिंग पैकेजेस आए हैं, ERP सॉल्यूशंस आए हैं, वो उसका उपयोग करो, ना कि खुद हाथ से लिखते बैठो, उसका टाइम वेस्ट मत करो। यू फोकस ऑन योर बिजनेस, मार्केटिंग, ना ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे तो आपको पास बहुत टाइम मिलेगा ये मार्केटिंग और सेल्स के लिए, इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। फ्रेंड्स, आपके अटेंशन के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को आपके उद्यमशील प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं और आपको शुभेच्छा देता हूं और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। મુંબઈથી આવ્યા છે એમનું પણ બુકેથી ઝડપથી સ્વાગત કરીશું અને મોહમ્મદ માટે જે યોગદાન આપ્યું છે મંત્રણા મેડમને મિત્રો આપણે એમનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। મગનલાલ યાદવ બંનેને વિનંતી કે મંચ પર આવે। હમણાં જે વાત થઈ આ મંચ પરથી આપણો જે સમાજ છે પડી રહ્યો છે ત્યારે હું એક વ્યક્તિ જાણું છું, મારા મિત્ર હસમુખભાઈ દોશી ઉભા થાવ। હસમુખભાઈ